Hello guys, this is Dr. Samir Adi from Jawaharlal Nehru Medical College, AMU Aligarh. So guys, the NEET PG results are out. Those who got their desired rank, congrats. Those who didn't got their desired rank, guys, work hard and I am sure you will achieve your desired branch. And especially interns, guys, this is the time you should gear up and give your best shot. Or whether you are a dropper or intern or first drop or second drop, guys, it doesn't even matter. Give it your like that you are giving the exam as a first attempt, and I am sure that will help you boost your rank in because everything that matters is those last 3 hours. So guys, my rank is 60,686 in NEET PG 2023, and this year my rank is 7,544 in NEET PG 2024. So guys, I will share the mistakes that I did in the first attempt and the right things I did in the second attempt to got a rank under 10,000. So guys, first of all, I will tell you about my NEET PG journey. So guys, I started I started ordering the rapid revision notes, latest edition, because whenever I open my old notes I get that कि यार ये क्वेश्चन मैंने गलत कैसे कर दिया था, कि आई फील वेरी डिमोटिवेटेड कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया. तो मैं उन पुराने नोट्स को बार बार देखता था तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था. सो आई ऑर्डर्ड रैपिड रिविजन नोट्स. So this is a major rapid revision notes from the respected teacher. So this is a major confusion के main notes or rapid revision notes. So guys, you will surely you have to go for rapid revision notes, because everything that will matter is those last 10 days. So in those last 10 days you will not revise main notes or rapid revision notes. You can revise easily, and you have to revise PYQs also. So in my opinion, you have to go for the rapid revision latest edition. Latest edition is a must, because the teacher knows that no, the question came from which topic, so the teacher have to add those latest topics or latest PYTs that came in my exam, that will surely come in NEET PG 2025. I ordered the latest rapid revision notes, and I suggest you to revise minimum 3 times, and revise again and again those notes only till NEET PG 2025. एंड डोंट बी इन फोमो के वो मेन नोट्स पढ़ रहा है तो मैं रैपिड रिवीजन से अच्छी रैंक नहीं ला सकता. यू कैन श्योरली गेट अ गुड रैंक फ्रॉम रैपिड रिवीजन ओनली. सेकंड थिंग आई डिड दैट वाज आई annotate all the PYQ of AIIMS, NEET and FMG into my notes and highlight them and read those topics more times to increase my rank. And third thing I did was that a custom module I did daily. I did 2 modules of 100 questions of any random subjects of any respective of any random subjects. Then there is a trick. So in Marrow there is only questions till 2018 of in PYQs, but in custom modules there are questions from before 2018 also. So I can give you a trick. So I did कि मैंने सारे के सारे कस्टम मॉड्यूल्स में PYQ जो 2018 के पहले थे वो बुकमार्क कर लिए, और 2018 के बाद के PYQs भी मैंने बुकमार्क कर लिए, और फिर जो सारे PYQs थे मैंने बुकमार्क सेक्शन में रखे, और जो बचे हुए PYQs थे और फिर मैंने उनको कट शॉर्ट किया. उन उन PYQs को जो बुकमार्क थे उनको मैंने स्टार वाले सेक्शन में, उनको मैंने जो मुझे टफ लगते थे उनको मैंने स्टार वाले सेक्शन में रखा, और फिर जो मुझे और टफ लगते थे उनको मैंने क्वेश्चन मार्क वाले सेक्शन में रखा. तो जो मुझे फोमो होता था कि मैं 2018 के पहले के PYQs भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनको भी मैंने इस तरीके से मैंने सॉल्व किया लास्ट डे के अंदर. एक और चीज़ मैंने सही ये करी कि लास्ट 10 डेज में मैंने सारे के सारे PYQs देखे, बिकॉज आई थिंक कि नीट PG एग्जाम इज मोर क्वेश्चन ओरिएंटेड बेस्ड. सो मैंने वो PYQs में लास्ट 10 डेज में मैंने एक दिन सिर्फ उन PYQs के लिए ही रखा. और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो PYQs होते हैं वो सिर्फ आप नीट PG का ही नहीं लगाएं, और FMG के भी लगाएं. फोकस ऑन दैट थिंग कि FMG के भी आप PYQs लगाएं, बिकॉज FMG के PYQ डायरेक्ट रिपीट आते हैं. और नाउ द ट्रेंड ऑल्सो चेंज कि AIIMS के PYQ डायरेक्ट रिपीट होते हैं. तो आई सजेस्ट कि अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप PSM की नहीं, गायनी सर्जरी एंड मेडिसिन के आप PYQs आप लगा सकते हैं, बिकॉज द पेपर इज मोर ऑन क्लिनिकल ओरिएंटेड, नॉट रेक्टिफिकेशन टाइप. सो क्लिनिकल ओरिएंटेड पेपर आ रहा है तो आप क्लिनिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस लगाएं ऑफ मेनली सर्जरी, गायनी मेडिसिन ऑफ AIIMS स्पेसिफिकली. एंड सो कस्टम मॉड्यूल्स में मेरा जो फोमो था वो खत्म हो गया इस तरीके से. फोर्थ थिंग मैंने ये करी कि मैंने BTR का बहुत ज़्यादा यूज़ किया. BTR को मैंने, क्योंकि अब फोटोज़ का ट्रेंड आ रहा है, इमेज का ट्रेंड आ रहा है, तो ज़ैनब वोरा मैम ने मेनली फोटोज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है. तो मैंने क्या किया कि BTR एक एड ऑन, मैंने BTR नहीं मंगवाया, मैंने BTR के PDF टेलीग्राम से मैंने डाउनलोड किया, और उन PDFs को मैंने अपने iPad में रख लिया. और फिर लास्ट एग्जाम के लास्ट 2 डेज में मैंने 8 सेकंड रखा था जिसमें मुझे सिर्फ फोटोज़ देखनी थी, PYQs लगाने थे, और एक मैंने अश्विनी कुमार सर का जो वाइब होता है विजुअल इमेज बेस्ड एवेल्यूशन, उसके मैंने फोटोज़ देखे, जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉन्सिल, थाइमस, लिम्फ नोड, आइलेट ऑफ लैंगर हैंड सेल्स. इनको मैंने एग्जाम के 2 दिन पहले मैंने रिवाइज किया.
फिफ्थ थिंग मैंने देखा कि जो सिक्स जो सब्जेक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्जरी, गाइनी, पैथो, फार्मा, फॉरेंसिक और बीटीआर इंटीग्रेटेड मेडिसिन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपको बहुत बार रिवाइज करना है और इनसे मेजर क्वेश्चंस इन्हीं से आते हैं, इंटीग्रेटेड होकर आते हैं, तो इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और सिक्स्थ थिंग मैंने ये करी कि निमोनिक्स पे मैंने बहुत ज़्यादा गौर किया। मैंने कुछ भी निमोनिक बनाया है, रैंडम कुछ भी बनाया है, ए के, वी के, ऐसे कर कुछ भी मैंने बनाया है जो ताकि मुझे एग्जाम के लास्ट में मुझे याद रहे। और मैंने 3 टीचर्स की हेल्प ली है, जो कि हैं डॉक्टर जैनब वोरा मैम, डॉक्टर निकेतन अनवानी मैम, डॉक्टर पीटी शर्मा मैम। निकेतन अनवानी मैम का एक NF करके है सीरीज, वो NF 1 से 100 तक है, उसको आप जरूर देखें, यूट्यूब पे फ्री पड़ा हुआ है, उसको आप पूरा देखें और उनके निमोनिक्स आप एनोटेट कर लें अपने नोट्स के अंदर। और डॉक्टर जैनब वोरा मैम तो है ही गॉड निमोनिक्स की, तो आप उनको उठा के अपने नोट्स में एनोटेट कर लें और एनोटेट करने के बाद आप उनको ही रिवाइज करें। तो गाइज मैंने एक चीज़ और ये करी कि डॉक्टर जैनब वोरा मैम कहती हैं कि आप बीटीआर में रैपिड रिवीजन के नोट्स, रैपिड रिवीजन के जो पॉइंट्स अलग से हैं उनको एनोटेट कर लें। तो मैंने यह किया कि मैंने जो अपने रैपिड रिवीजन नोट बनाए थे उसमें मैंने जैनब वोरा मैम की जो बीटीआर हैं उसके पॉइंट्स को ऐड कर लिया। जैनब वोरा मैम मेनली एक चीज़ और अच्छी है सिखाती हैं कि वो क्वेश्चन करना सिखा देती हैं, तो क्वेश्चन करना भी एक आर्ट है, तो वो जैनब वोरा मैम बहुत अच्छे से सिखा देती हैं। तो आपको जैनब वोरा मैम का TND भी देखना चाहिए, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। और जैनब वोरा मैम का एक मेगा नीट बीटीआर भी मैंने किया था और एक छोटी कॉपी भी किया था। तो मेगा नीट बीटीआर से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन रिपीट थे, तो जैनब वोरा मैम नोज की क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, तो आपको जैनब वोरा मैम की बीटीआर को भी फॉलो करना चाहिए। एंड अनदर थिंग आई डिड वाज के एम्स के मैं सारे PYQs पे नहीं गया, मैंने सिर्फ स्पेसिफिकली ही किए हैं। एंड एम्स के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप डॉक्टर A.T. संजय गुप्ता सर जो हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, वो आपको एम्स के बारे में बेस्ट एडवाइस देंगे। एंड मेरा एक और ओपिनियन ये है कि आप लोगों को ये फोमो होता है कि हम 2018 के पहले की भी PYQs लगाएं तो हमारी रैंक अच्छी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। उससे पहले की भी अगर आप PYQs लगाएंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज क्वेश्चन इज नाउ मोर क्लिनिकली ओरिएंटेड। सो आपको इतना ज़्यादा पीछे क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, आप 2018 के बाद के ही क्वेश्चन लगाएं, वही आप रिवाइज कर लें, उससे ही आपकी आई एम श्योर रैंक बहुत अच्छी आएगी। सेकंड अनदर थिंग आई डिड वाज कि लास्ट 10 डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। लास्ट 10 डेज पे आप स्ट्रेटेजाइज कैसे करते हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो आप जो अपना कंटेंट है उसको रिड्यूस करते जाएं, तो आप रैपिड रिवीजन से पढ़ेंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आपको रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो वो बहुत ज़्यादा ईजी है रैपिड रिवीजन, इसलिए आप रैपिड रिवीजन ही बनाएं। मैं उस पर डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे कि आप कौन से रैपिड रिवीजन सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैं उसके बारे में आपको कंटेंट बताऊंगा कौन से रैपिड रिवीजन सबसे ज़्यादा अच्छे हैं इन माई ओपिनियन, बिकॉज मैंने बहुत सारे रैपिड रिवीजन ट्राई किए हैं ड्रॉप ईयर में। और आप PYQ एम्स के सारे PYQ नहीं लगाएं, सिर्फ आप स्पेसिफिक टॉपिक के लगाएं, जैसे कि सर्जरी, गाइनी, PSM। आप और के भी लगा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, लेकिन आप फिजियो, एनाटॉमी और PSM के छोड़ सकते हैं, बिकॉज उसमें क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के ही आते हैं। और कभी अपना सोर्स चेंज ना करें, एक बार आपने जिस रैपिड रिवीजन से पढ़ लिया उसमें ही एनोटेट करें, रोड सोर्स चेंज ना करें। और एनोटेट भी बहुत ज़्यादा ना करें, सिर्फ PYQ ही एनोटेट करें, कुछ भी एनोटेट ना करें, उसके बाद वो कॉपी बहुत ज़्यादा भर जाती है, आप उसको भी आपको उसको भी पढ़ने का मन नहीं करता। दूसरी चीज लास्ट अनदर थिंग आई वांट टू से दैट कि GT आप तभी दें जब आप एक बार अपने रैपिड रिवीजन अच्छे से पढ़ लें, उसी के बाद दें, वरना GT देने का कोई फायदा नहीं है। अगेन एंड अगेन GT भी ना देते रहें कि आप GT दे रहे हैं, सिर्फ आप GT दे रहे हैं और नोट्स नहीं पढ़ लें। आप हर बार नोट्स पढ़ें उसके बाद ही GT दें, और GT को रिव्यू करें, खास करके अपने दोस्त के साथ रिव्यू करें, अपने फ्रेंड को लें और उस फ्रेंड के साथ अलग अलग GT दें, दोनों साथ में रिव्यू करें और अपने पॉइंट शेयर करें। और मैंने जैसे कि लास्ट GT में दिसंबर में दिया था, बिकॉज मुझे लगा मैंने हर दिन में एक दिन में 3 GT भी दिए हैं और दिसंबर के बाद मैंने एक भी GT नहीं दिया। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि GT इज़ नॉट एवरीथिंग, तो जो द ओनली थिंग मैटर इज दोज 3 आवर्स। तो अब GT देने का उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो आप सिर्फ नए पॉइंट्स के लिए GT दे सकते हैं, तो आप रिव्यू ज़्यादा करें। नए पॉइंट्स जो क्लिनिकली ओरिएंटेड क्वेश्चन अब आ रहे हैं वो GT आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप GT नहीं देते तो GT नहीं देते उस फॉर्म में, क्योंकि बिकॉज अब ट्रेंड अब चेंज हो गया है, बिकॉज कि अब 42 मिनट्स में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप ये ना सोचेंगे सिर्फ GT ही दूंगा तो मैं तभी अच्छी रैंक आएगी, बिकॉज कि आपको क्वेश्चन टिक करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको इतना नहीं सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन टिक करूँ ना करूँ, तो इतना आपको नहीं सोचना है, आपको बस टिक करना और आगे बढ़ना है। तो टाइम मैनेजमेंट का उतना ज़्यादा रूल नहीं रहा है, अब आपको जो है ना श्योरिटी होनी चाहिए और आपको क्वेश्चन टिक करके सिर्फ आगे बढ़ना है। तो GT से आपको कुछ मैटर नहीं होता, आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, और सिर्फ आप अपने आप से कॉम्पिटिटिव रहें, दोस्तों से कॉम्पिटिटिव ना रहें, बिकॉज दोस्त में इस इनिशियली बहुत अच्छा रहता है कि बहुत अच्छा हेल्थी इन्वायरमेंट रहता है, उसके बाद आके आप आपस में कम्पीट करने लग जाते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा इन्वायरमेंट है, तो आप उस इन्वायरमेंट में बहुत बड़ी रेस है ये, तो ये छोटी मोटी रेस नहीं है, तो बहुत बड़ी रेस है, तो आप सिर्फ अपने से ही कम्पीट करें। इनिशियली हेल्थी होता है, बाद में जाके अनहेल्थी हो जाता है इन माई ओपिनियन। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि सब्जेक्ट टेस्ट का मुझे बेनिफिट हुआ है, मिनी टेस्ट का मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, बिकॉज मिनी टेस्ट बहुत एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आते थे, उससे कोई मुझे उतना बेनिफिट नहीं हुआ था। और BTR को आप मेन सोर्स बनाएं, BTR की फोटोज देखें, फोटोज ज़्यादा देखें और अगेन एंड अगेन उसको रिवाइज करें। BTR को आप एनोटेट कर लें रैपिड रिवीजन में। कंक्लूजन में इस वीडियो को यही देना चाहूँगा कि आप जो है किसी से देयर इज नो नीड टू फियर फ्रॉम एनीवन, बिकॉज कि आप ये ना सोचिए किसी ने ज़्यादा पढ़ा है, तो अगर किसी ने ज़्यादा पढ़ा है जरूरी नहीं कि वो अच्छी रैंक लाए। आप ये सोचिए अगर उसने ज़्यादा पढ़ा है तो
किसी ने एग्जाम ओरिएंटेड ज़्यादा पढ़ा है, आप ही सोचिए किसी के 160 आ रहे हैं जीटी में, वो भी मत सोचेंगे जीटी में 160 आ रहे हैं तो वो मुझसे ज़्यादा जानता हो या फिर उसकी अच्छी रैंक ही आएगी। 160 जीटी में आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी रैंक ही आएगी। आप एग्जाम ओरिएंटेड पे फोकस रखें और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को पीवाईक्यूज पे ज़्यादा फोकस रखें। और वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ऐसा होता है, तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान ना दें, आप अपने पे ही ध्यान दें और सिर्फ अपनी पढ़ाई दें, अपना बेस्ट दें। और अनदर थिंग आई वांट टू से दैट कि अपने फ्रेंड्स और सीनियर्स के साथ कंसल्ट में रहें और उनसे रेगुलरली डाउट डिस्कशन करें। और इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप अपने फ्रेंड से बातें करें और रिगार्डिंग नीट पीजी के अब कैसे क्रैक होगा, अब यार ये क्वेश्चन फंस गया है, अब इसको मैं कैसे करूँ, अब ये आगे ये जीटी में ये क्वेश्चन तुमने कैसे सॉल्व किया, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी बहुत खुद सप्लीज आई हैं और खुद मैं नीट पीजी वो एम्स के लिए एलिजिबल नहीं था बिकॉज मेरी 54% ही रह गई थी सप्लीज की वजह से। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं, आप रेडियोलॉजी सीट भी निकाल सकते हैं। बिकॉज रेडियोलॉजी आप ये मत सोचेंगे रैपिड रिवीजन से ही, रैपिड रिवीजन से सिर्फ 10,000 की रैंक रहेगी, आपकी रैंक 1000 भी आ सकती है। ये मिथ है कि रेडियोलॉजी सिर्फ मेन नोट्स पढ़ने से आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेन नोट्स रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आई एडवाइस यू टू नॉट रीड मेन नोट्स इवन वंस, डायरेक्ट शिफ्ट ऑन टू रैपिड रिवीजन। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि शिफ्ट ऑन टू रैपिड रिवीजन। और रेडियोलॉजी सिर्फ 10,000 के अंदर आई थिंक ये सिर्फ लक का मामला होता है कि 10,000 के अंदर कि आपका लक कितना अच्छा है। तो 10,000 के अंदर सिर्फ रैंक जो है सिर्फ लक बेस्ड होती है इन माय ओपिनियन। मतलब हार्डवर्क भी होता है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी होता है, बट लक जो है वो एक अपर हैंड पे होता है इन द एंड, in the end and below 10,000. So and don't fear of anyone, give it your best shot and keep trying and I will see you on the other side. This is Samir Atif signing off. Thank you.